Hello everyone, very good evening. Welcome to Oliver. My name is Varsha Dhuman, and in this particular session, we are going to discuss about top 20 MCQ. The students who are in the session, please let me know that my voice is clear to you and the screen is clearly visible so that we can start our today's discussion. We have to discuss very important MCQs related to agriculture and so before proceeding, I just want to tell you that if you guys are connected with us and taking all the regular classes on and also right? See, aspirants, you will receive the PDF of all the YouTube classes on the application of Oliver, and you have to register yourself on the application. Okay, and with that, you also provided with the mock test on weekends that will help you better preparations. तो आप लोगों को Oliver के application पे register कर लेना है. And the aspirants who are targeting RBI Grade B examination for the year 2025. Okay, so on 28th of May at 6 p.m., we are having a Zoom session with all the students, okay, where we are going to discuss about the 7 game-changing tips that you should to follow, and the question and answers with experts will be there. You can ask us anything that will like the questions related to your preparation, study plan, how to focus on topics, and what should you do. All things will be discussed here. So make sure you should be the part of this particular session application. Okay, so make sure you will be connected with that. This description may you will get the link of this particular session. Okay. Now we have as it's a routine कि हम एक क्वेश्चन को होमवर्क क्वेश्चन की तरह देते हैं और उसको आपको आंसर करना होता है कमेंट बॉक्स बट यू गाइस आर नॉट आंसरिंग इट इन द कमेंट बॉक्स बट कोई बात नहीं क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैड गिवन द आंसर इवन ठीक है और वॉइस में अगर आपको कोई इशू रहता है तो प्लीज लेट मी नो ड्यूरिंग द सेशन ठीक है आप बाद में वॉइस रिलेटेड कुछ क्वेरीज डालते हो तो उसको मैं रिजोल्व नहीं कर सकती हूँ जो क्लास में रहते हैं प्लीज मेंशन इफ यू फील लाइक देयर सम इशू okay so the last homework question was which of the following nutrient is used for flowering fruit setting and thickening of the cell wall see we need to provide the plants with different nutrients ताकि plants की जो basic growth है वो better तरीके से हो सके so some are classified as micronutrients some are classified as macronutrients basis of the amount आप कितना plants के लिए requested है ठीक है तो आपको बताना है कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए जरूरी है सो दैट दे कैन फ्लावर सेट दे कैन फ्रूट सेट एंड थिकनेस ऑफ द सेल वॉल विल अकर मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक और नाइट्रोजन राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोथ ठीक है now let's move with today's session so in today's session we will have the questions from let me tell you आप लोग का ये भी एक क्वेरी रहता है कौन से so आज हमारे जो क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा दैट विल बी फ्रॉम soil fertility and role of fertilizer okay soil fertility and role of fertilizer or some questions will be from the topic soil erosion and soil erosion ठीक है तो ये टॉपिक से आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ओके now moving forward the question is growth and retardation right ग्रोथ रिटार्डेशन हो रही है लाइक प्लांट्स जो है जितना ग्रो करना चाहिए उतना ग्रो नहीं कर रहा है बल्कि नेगेटिव में ही उसका एंड लोअर लीव्स आर बिकमिंग येलो तो ये किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी में ऐसे सिम्टम्स हम देखते हैं लाइक हमारे सॉइल के अंदर ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है इस वजह से सॉइल हमें रिटार्डेशन दिखा रहा है और जो लोअर लीव्स है दे आर टर्निंग येलो so that happens option A potassium option B phosphorus option C nitrogen option D magnesium zinc किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी में ये सिचुएशन फेस होती है this is faced when the soil is deficient in nitrogen okay next is which of the following nutrient play a key role in sugar synthesis in sugarcane तो sugarcane तो basically आपके सुक्रोज कंटेंट ही known ठीक है अभी इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ शुगर केन के लिए fair price FRP fair and remunerative price decide होगा और इस साल के 2025-26 की ग्रोइंग सीजन के लिए दैट इज डिसाइडेड ₹355 पर ठीक है और कौन डिसाइड करता है
CACP द स्टेट रिकमेंडेशंस एंड इसमें आपके मिल जो ओनर्स है उनका recommendations साथ भी डिसाइड करके साथ भी कंसिडर करके डिसाइड होता है। शुगर केन को हम इसलिए ग्रो कर इसी के साथ साथ आपसे पूछा गया कौन सा न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, नाइट्रोजन एंड which is important in sugarcane for the synthesis of sugar is potassium। ठीक है, पोटेशियम का एडिक्वेट अमाउंट सप्लाई हमें सॉइल को मेंटेन करना पड़ेगा कि हमें गुड अमाउंट में शुगर ऑब्टेन होगा शुगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 is the deficiency in plants can be visually identified। अगर प्लांट में कुछ न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी चल रहा है तो अर्ली वेजिटेटिव स्टेजेस में हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज एन एबनॉर्मली डार्क ग्रीन या फिर रेडिश पर्पल कलर अलोंग द एज ऑफ द लोअर, जो लोअर प्लांट लीव्स हैं आप उनके अराउंड देखोगे या तो डार्क ग्रीन का डिपोजिशन, एबनॉर्मली डार्क ग्रीन का डिपोजिशन रहेगा या फिर रेडिश पर्पल कलर एजेस के अराउंड विजिबल होगा, तो दैट टाइम यू विल कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग कि आपके प्लांट के अंदर इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी चल रही है। कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी? पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम या फिर बोरोन। आज के क्वेश्चन के तो सारे आंसर्स यू नीड टू मेंशन इन योर, दैट इज अ फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। फॉस्फोरस डेफिशिएंसी जब प्लांट्स में होती है तो इस तरह का अपीयरेंसेस वो सिम्टम्स वो आपको शो करते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस दैट कंटेन, इनमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं which when added to the soil increases fertility and promote plant growth। ठीक है, तो हम प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट करने के लिए हम फार्म यार्ड मैन्योर्स ऐड करते हैं, ग्रीन मैन्योर्स ऐड करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड, बायो फर्टिलाइजर्स की बात, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, नीड टू टेल वो कौन से तरह का न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड ऑन सॉइल के अंदर और वो फिर प्लांट को सॉइल से जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो एक्सट्रैक्ट कर उसको स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को तो ये सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज इधर ऑप्शन ए केमिकल फर्टिलाइजर, ऑप्शन बी बायो फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन ग्रीन मैन्योर्स, ऑप्शन डी मल्च क्रॉप्स और ऑप्शन ई ऑल ऑफ द, और द राइट आंसर इज बायो फर्टिलाइजर। बायो। क्वेश्चन नंबर 5 इज डैश फर्टिलाइजर्स कंसिस्ट ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि है प्लांट रेसिड्यूज। इन फर्टिलाइजर्स के अंदर आपके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, कंपोजिट है, मेन्योर है, प्लांट रेसिड्यूज। जब ये डिकम्पोज होते हैं दे स्लोली रिलीज द न्यूट्रिएंट, ये सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट रिलीज करेंगे प्रोवाइडिंग अ ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूस न्यूट्रिएंट सप्लाई, और प्लांट्स को ग्रेजुअली एंड कॉन्टिन्यूस मेंटेन रहे, आप उनको केमिकल नहीं इनटेक करा। तो इस तरह के फर्टिलाइजर्स को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए केमिकल फर्टिलाइजर, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑप्शन बायो फर्टिलाइजर, ऑप्शन नैनो फर्टिलाइजर, ऑप्शन ए एंड द राइट आंसर इज, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आप किसी लिविंग सेल को तो नहीं डाल रहे, जैसे यहाँ पे आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सप्लीमेंट, यहाँ पे आप उनको कंपोजिट प्लांट रेसिड्यू से, इसलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। मोस्ट कॉमन पोटेशियम जिससे प्लांट को सप्लीमेंट, वो फर्टिलाइजर कौन सा है फ्रॉम गिवन बिलो? So right answer for this question MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, बोथ ए एंड बी, या फिर पोटेशियम। कॉमनली अगर हमें सॉइल को पोटेशियम सप्लाई करना है तो दैट इज सप्लाइड थ्रू MOP और पोटेशियम क्लोराइड। राइट आंसर विल बी एंड FYM stands for, FYM का फुल फॉर्म रहता है फार्म यार्ड, नाम से ही क्लियर हो रहा है that you are supplying the farmland with the manure which is obtained from farm itself, like ये जो livestock का जो wastage है, residues है, वो old plants के जो debris और residues है उसी को आप as an add कर, is it a chemical fertilizer or bio fertilizer? The right answer is organic fertilizer। Next question is example for green manuring crops। ठीक है, कुछ crop doing them with that reason in mind कि आपको ये आपका ग्रीन मैन्योर्स प्रोवाइड करेगी, दे आर नोन एज ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप।
के न्यूट्रिएंट्स। तो ऑप्शंस आर पोर्क्यामिया पिनाटा, एसआरटी रेक्टा, इंडिका, ग्लायरिसिडिया, जेट्रो। आपका क्रोटेलेरिया जिनसिया। राइट आंसर विल बी क्रोटेलेरिया। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इज ऑब्जर्व्ड इन, जब किसी प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो, यानी कि प्लांट के पास सफिशिएंट नाइट्रोजन, तो कौन से प्लांट के पार्ट को ऑब्जर्व करके यू विल रियलाइज दैट, और उसके बेसिस पे आप स्पेसिफिक मेजर्स लोगे कि आप सप्लाई करो। सो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इज ऑब्जर्व्ड इन, कहाँ पे ऑब्जर्व होती है? यंगर लीव्स में, में मिडल लीव्स में, फ्रूट या फिर फ्लावर्स। इट इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल। है, जब आप प्लांट्स को older leaves को observe करते हो, दे स्टार्ट शोइंग सेंसेस एंड वहाँ पे येलोइंग अगर होना, दैट विल शो दैट प्लांट इज हैविंग नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, yellowing of older leaves is the deficient, the same question but the language is different. So I am giving you the hint. देखो ये कुछ concept questions है, so that you will be capable of the right answer. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है like yellowing of, तो आपके older leaves है, it is because of nitrogen, potassium, magnesium, phosphorus or it is because of nitrogen. में से you need to tell question number 11 है nitrogen fixing bacteria. Which of the following bacteria is known as nitrogen? ये जो भी जिस भी specific form में नाइट्रोजन अवेलेबल है सॉइल, requested nitrates और nitrates की form, that is इस तरह से नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। Options here are Rhizobium bacteria, Azospirillum, Azotobacter या Azolla, और ऑप्शन नंबर ई इज ओलो। तो ये सभी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट्स को, सो दैट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो, ये वो न्यूट्रिएंट है जिनकी रिक्वायरमेंट एक्सेस अमाउंट, तो मैं आपको बता दूं, वन इज नाइट्रोजन, थर्ड इज, ये तो आपके एन ए एस बी, तो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, अगर ये तीन ऑप्शंस में कोई भी आए तो यू नीड टू मार्क दैट ये प्लांट्स को एक्सेस अमाउंट में नीडेड होते हैं ग्रोथ। बोरोन का हमने यूज पढ़ा, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ना प्लांट के लिए, प्लीज लाइक मेंशन इन योर नोटबुक एज वेल कि वो प्लांट्स के लिए क्यों जरूरी, क्या प्लांट की सिम्टम्स होंगे अगर इन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। सिंबल्स के नाम मैं लिख देती हूँ फॉर यू, जो भी स्टूडेंट और नॉन एग्री बैकग्राउंड। एफ जी इज फॉर मैग्नीशियम, is for calcium, Cu is for, N is for nitrogen, Cl is for, okay. The right answer to the question is nitrogen. Okay. Who gave the concept of criteria of essentiality, यानी कि कुछ आपके essential nutrients हैं जो nutrients plant के लिए required होते हैं, on the basis कितना amount में plant के लिए required, they are categorized as micronutrients. ये concept किसी soil scientist ने ही दिया है, तो need to name that person जो research associate इनके साथ करें। Options are Arnon and Stout. Option B is Leb. Option C is Jethro Tull जो टिलेज के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन मेंडल जो इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स के साथ। तो इसका राइट आंसर है आर्नन एंड स्टाउट। ये आप लोगों ने ये ना 10th क्लास की, ठीक है, तो कभी कभी और हमने ऑब्वियसली सॉइल साइंस में ग्रेजुएशन, इसका रेफरेंस आप देखो, आपने 10th या साइंस में भी पढ़ा, ठीक है। नॉन एग्री स्टूडेंट्स फील लाइक कि बहुत हार्ड है, हार्ड ही नहीं। अगर आपने अपना 10th और 12th में भी अच्छा किया है साइंस को, तो इट इज बेटर फॉर यू, आप कर सकते हो। Which of the following has patent in production of nano UVA?
ये नैनो यूरिया और डाई अमोनियम फॉस्फेट को प्रोड्यूस करने का पेटेंट किसको मिला है? आईसीएआर को, मैनेज जो कि हैदराबाद निम्स को, या फिर आईसीआरआई से डी या फिर इसको, ये आप किसको पेटेंट मिला है कि हाँ भाई ये जो इंस्टीट्यूशन दैट कैन प्रोड्यूस, ये आपका प्रोड्यूस कर सकते हैं नैनो यूरिया एंड डैप को। इसका एडवांटेज क्या रहेगा कि आप जो है लिमिटेड अमाउंट में डायरेक्टली टू द प्लांट रूट्स इन न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करें, ठीक है, नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म। तो वेस्टेज आपका काफी हद तक, ठीक है। और ये पेटेंट मिला है इसको, ये पेटेंट किसको मिला है? इसको यू नो, ठीक है। इसको की फुल फॉर्म की आप लोगों को पता होगी, दैट इज इंडियन, क्या, इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर, ऐसे फुल फॉर्म इंस्टीट्यूशन आपके करंट अफेयर के सेशन में भी वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इंस्टीट्यूशन जो रिसेंटली न्यूज में है, ठीक है। ऑप्शन 3 इज डैश रेफर्स टू टर्निंग इनटू द सॉइल ग्रीन लीव्स एंड टेंडर twigs collected from shrubs and trees grown on wastelands and nearby forests। तो इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो? टर्निंग रेफर्स टू टर्निंग इनटू द सॉइल ग्रीन लीव्स एंड टेंडर ट्विग्स कलेक्टेड, आपने श्रब से, इससे जो बर्ड्स के अराउंड ग्रोथ थे, वेस्टलैंड्स पे ग्रोथ थे, या फिर नियर बाय फॉरेस्ट एरियाज में जो ग्रोथ से आप सॉइल ग्रीन लीव्स को कलेक्ट करा, टेंडर लीव्स को कलेक्ट किया और फिर उससे आपने प्लांट किया। इसको क्या कहेंगे? ग्रीन लीफ, ग्रीन मैन्योरिंग, फार्म यार्ड में विजिटिंग या बायोगैस प्रोडक्ट, okay? Turning into the soil, green leaves and tender twigs collected from centuries grown on plants, slants and nearby. Definition: green leaf, आपने green leaves और tender leaves कलेक्ट करा है, ठीक है, बर्न्स पे से, वेस्टलैंड से, या फिर नियर बाय फॉरेस्ट एरिया से, एंड देन यूजिंग दैम, दैट इज द ग्रीन लीफ मैन्यूर, ग्रीन लीफ का सप्लाई। Okay, next is example phosphate solubilizer। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? This particular bacteria or microorganism help the plant to get the phosphorus stabilized कर, ठीक है। In specific, need to name that particular. Is it rhizobium? Is it mycorrhiza? Is it azolla, azotobacter या फिर azospirilla? Right answer to this question, mycorrhiza। तो mycorrhiza is not bacteria. Mycorrhiza is a symbiotic association। किस किस की symbiotic association? Myco stands for fungus, rhiza stands for roots fire। Okay, तो root fire plants और fungus एक symbiotic association relation में एक साथ, the fungus will help in getting the nutrients. Roots of the higher plants will provide the shelter to the fungus, and that's how this this particular association will help in phosphate solubilizing or आपका phosphate available plants. Question number 17 is which of the following is micronutrient? I told you on the basis of required है, basis nutrient कर दिया micronutrients and macronutrients, ठीक है। तो आपको बताना which is micro, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एंड ऑफ, ठीक है। पीछे मैंने बताया था नाइट्रोजन, पोटेशियम माइक्रो मैक्रो, ठीक है आपके मैक्रो ज्यादा अमाउंट, दिस वन इज माइक्रो। सल्फर क्या है आपका जो कम अमाउंट, ठीक है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सल्फर भी मैंने आपको बताया था कि एनपीएस, ये तो तीनों एसेंशियल हैं। सल्फर भी न्यूट्रिएंट जो मैक्रो ज्यादा अमाउंट। तो उसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट अदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज माइक्रो, so none of the above is the right answer. 7, okay? Interveinal chlorosis is due to veins, ये आपके plants के हैं,
Okay, इसमें this is a venation mid ribs के around. Okay, basically आपके parallel venations in the monochord sleeve और dichord sleeve आपके reticulate venation. तो दो वेन्स टॉरसेस और आप देख रहे हैं वेरिएशंस होते हैं तो किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी एन स्टैंड्स फॉर K is for potassium, S is for sulfur, F is for iron. The intervenal crisis is due to the deficiency to the deficit. Okay. Question number 19 is which of is the most dominant factor for degradation? Semi arid zone. क्या हम बात कर रहे हैं तो सॉइल डिग्रेड हो रही है आपको मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर विंड इरोजन हो हिल इरोजन मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर विंड इरोजन ये what hill sheet that is different यहाँ पे हैवी सैंड ड्यून ठीक है विंड्स ब्लो आपकी हाई सैंडी सोil को साथ लेकर चले जाते हैं सैंड ड्यून okay so this is all about yeah before ending the session or before providing you the experience I just want to ठीक है ask us anything ये एक सेशन है आप लोगों के 28th ऑफ मई को इसमें आपके मेजर एजेंडाज जो डिस्कस होंगे 7 गेम चेंजिंग टिप्स विल बी प्रोवाइड सर क्वेश्चन जो आप पूछना है ताकि डिस्कस हो सेशन ठीक है आपसे रजिस्ट्रेशन जो लिंक है तो ये आपका हो व्हाट इज द टाइप ऑफ फार्मिंग डन द कंटूर अगर स्लोप लेस देन % है और आप सॉइल इरोजन फार्मिंग एडेड बंडिंग बेंच टेरेसिंग आप अगर कमेंट बॉक्स सबकी डेफिनेशन दैट इज रियली रियली चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठीक है और कमेंट में अपने आंसर बताना आप हमारे स्टॉल पे रजिस्टर कर लीजिए टेलीग्राम एज वेल timely. Here I am ending the session. We'll meet you in the next class. Bye bye.